تو اللہ رب العالمین نے رشتوں کا فہم اور رشتوں کی سمجھ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اسی لیے ہماری شریعت میں رشتوں کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسى لہ فی اثرہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے رزق میں برکت نازل کر دے، او ینسى لہ فی اثرہ، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری عمر کو لمبی کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کے رشتے کو بھولے نہیں ہیں۔ آج تو ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، جتنا کارٹونوں سے واقف ہیں یہ بچے، اتنا اپنے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہے، کیونکہ بچے کھانا کب کھائیں گے؟ جب ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا، موبائل پر کارٹون دیکھیں گے تبھی کھانا کھائیں گے۔ تو بچے جتنا کارٹونوں سے واقف ہے اتنا اپنے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہے۔ ایک 8 سال کے بچے سے میں نے پوچھا کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ ابھی اس کے دادا زندہ ہے، دادا کا نام پوچھا تو 8 سال کا بچہ اپنے دادا کا نام نہیں بتا پائے۔ اگر انہی بچوں سے کارٹونوں کے نام پوچھو گے تو ایک سے ایک کارٹون کے نام بتا دیں گے۔ تو بچے جتنا کارٹونوں سے واقف ہے اتنا اپنے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کا معاملہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم رشتہ اس سے نبھاتے ہیں جو ہم سے رشتہ نبھاتا ہے۔ آپ کے یہاں شادی تھی، آپ نے ہمیں بلایا، ہمارے یہاں شادی پڑے گی، ہم آپ کو بلائیں گے۔ آپ کے یہاں شادی تھی، آپ کے فلاں رشتہ دار نے 1000 روپے کا گفٹ کیا، اس رشتہ دار کے یہاں شادی ہوگی، آپ بھی 1000 روپے کا گفٹ کریں گے، حالانکہ آپ کی حیثیت 5000 سے بھی زیادہ گفٹ کر لیں گے، لیکن نہیں۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد پھر ہمیں اس روئے زمین پر بسایا۔ ویسے تو اللہ کی بہت ساری مخلوقات اس روئے زمین پر بستی ہیں انسانوں کے ساتھ، لیکن جو فضیلت، جو عظمت اور جو مقام اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو عطا کیا ہے، وہ دنیا کے کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری وشیشتاؤں سے، بہت سارے گن اور بہت ساری خوبیوں سے ہمیں انسانوں کو نوازا ہے۔ جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی، انسانوں کی اسی خوبی میں سے ایک بہت بڑی خوبی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو عطا کی وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں رشتوں کا فہم دیا ہے، رشتوں کی ہمیں سمجھ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جتنا اچھے طریقے سے رشتوں کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی دنیا کے انسان سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ آپ چلے جائیں، آپ کے گاؤں میں کوئی بکری کا بچہ ہو، وہ بکری کا بچہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو تو بالکل بھی نہیں پہچانتا۔ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کو پہچانتا، وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک بکری کا بچہ اپنے پیر پہ نہیں اسٹینڈ ہوتا ہے تب تک اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ جیسے ہی بکری کا بچہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا فوراً اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، اور اس سے اس کی ماں کا کوئی ریلیشن، کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو رشتوں کا جو فہم دیا ہے وہ جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے نہیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اسی خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور انسانوں کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ جہاں پر ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی جانب سے اور باپ کی جانب سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے،
जिस घर में हम पैदा हुए, कोई हमारा बाप होता है, कोई हमारे चाचा होते हैं, कोई हमारी चच्ची होती है, कोई हमारे फूफा होते हैं, कोई हमारी फूफी होती है। इसी तरीके से माँ की जानिब से भी एक रिश्ता चलता है तसलसल के साथ। कोई हमारी नानी होती है, कोई हमारे नाना होते हैं, कोई हमारी खाला होती है, कोई खालू होते हैं, कोई मामी होती है, कोई मामू होते हैं। इस तरीके से रिश्तों का एक सिलसिला लंबा चौड़ा चलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फहम, ये समझ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता की। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि वसेहरा, और हमने इंसानों को ससुराल वाला बनाया है। एक इंसान जब शादी करता है उसका एक ससुराल होता है, कोई उसकी सास होती है, कोई उसके ससुर होते हैं। इस तरीके से वहां भी एक रिश्तों का सिलसिला लंबा चौड़ा चलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तों का फहम और रिश्तों की समझ इंसानों के अलावा किसी और मखलूक को नहीं अता की। इसीलिए हमारी शरीयत में रिश्तों को बहुत ज्यादा संभाल कर रखने की ताकीद की गई है। जानवरों के यहाँ रिश्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उनके यहाँ ये ताकीद नहीं पाई जाती। इंसानों के यहाँ रिश्तों को बहुत ज्यादा संभाल कर रखने की ताकीद की गई है, क्योंकि रिश्तों का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, हम इंसानों के अंदर है, वो दुनिया के किसी और मखलूक के अंदर नहीं है। आप देखिए कि हमारी शरीयत में किस तरीके से रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए ताकीद फरमाई। आप देखें कि सारी शरीयत जो एक साथ नाज़िल नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक नबूवत के 23 साल तक नबूवत के बाद आप 23 साल तक जिंदा रहे। सारी शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार में आसमान से थोड़ी नाज़िल कर दी, स्टेप बाय स्टेप नाज़िल हुई, धीमे धीमे नाज़िल हुई। इब्तिदाई दौर में जब इस्लाम का आरंभ हुआ, इस्लाम की जब स्टार्टिंग हुई, तो इस इब्तिदाई दौर में केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं चीजों को तलब किया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने केवल उन्हीं चीजों को तलब किया। आप देखेंगे कि शराब जो है मदीने में हराम हुई, जुआ मदीने में हराम हुआ, हज मदीने में फर्ज हुआ, ज़कात मदीने में फर्ज हुई, रमजान के रोजे मदीने में फर्ज हुई। बाकी सारी शरीयतें जो है मदीना के अंदर फर्ज हुई। मक्का के इब्तिदाई दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा अहम चीजों को तलब किया। उन्हीं अहम चीजों में से एक ये चीज थी कि रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तेदारों को पहचाना जाए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। आप देखेंगे कि अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल जो है, बिल्कुल इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वाले हैं। जैसे ही इस्लाम आया फौरन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं कि माँ अंता, व्हाट आर यू, आप क्या हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं कि आप क्या हैं। आपने फरमाया कि आना नबीयुन, आई एम प्रोफेट, मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का संदेशा हूँ। उन्होंने पूछा कि ये नबी क्या होता है, नबी किसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि अरसलनी अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना पैगाम, अपना मैसेज और अपना संदेश देकर भेजा है ताकि लोगों तक मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या पैगाम देकर भेजा है, अल्लाह ने आपको क्या संदेश देकर भेजा है। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल 2 बातें बताई, केवल 2 बातें बताई। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को देकर भेजा है। क्या 2 चीजें हैं? बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान, रिश्तों को जोड़ा जाए और बुतों को तोड़ा जाए। केवल 2 चीजों को। आप देखें कि रिश्तों को निभाना कितना अहम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकीदे के साथ साथ रिश्तों को भी जोड़ दिया। बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान, रिश्तों को जोड़ो और बुतों को तोड़ो। अकीदे में यह है कि हम शिर्क की गंदगी से पाक हो जाए। एक अल्लाह के साथ जो 360 बुतों की इबादत की जाती है, एक अल्लाह के साथ जो शिर्क किया जाता है, अल्लाह की इबादत में किसी को पार्टनर बनाया जाता है, अल्लाह की इबादत में किसी को साझी बनाया जाता है, हम इस शिर्क की गंदगी से पाक हो जाए और मामलात में ये है कि हम रिश्ते निभाने वाले बन जाए, अपने रिश्तेदारों को पहचानने लगे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने लगे। यही 2 चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी और दुनिया के इंसानों से इन्हीं 2 चीजों को तलब किया था।
आप देखें कि हमारी शरीयत में रिश्तों को निभाना कितना अहम है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल कौन सा है? आपने फरमाया कि अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की बातों को मानना अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ईमान लाने के बाद, अल्लाह की बात मान लेने के बाद, अल्लाह की बात मान लेने के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? आपने फरमाया कि सिलतुर रहीम, रिश्तों को जोड़ना, अपने रिश्तेदारों को पहचानना, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे घटिया और सबसे मकबूल अमल कौन सा है? अल्लाह की नजर में सबसे बुरा अमल कौन सा है? आपने फरमाया कि शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ शिर्क करना अल्लाह के नजदीक सबसे घटिया और सबसे बदतरीन अमल है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, शिर्क के बाद अल्लाह की नजर में सबसे बुरा अमल कौन सा है? शिर्क के बाद अल्लाह की नजर में सबसे घटिया अमल कौन सा है? आपने फरमाया कि कतियतुर रहीम, रिश्ते तोड़ना, रिश्तेदारी ना निभाना, अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करना, अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करना अल्लाह के नजदीक सबसे घटिया और सबसे बदतरीन अमल है। आप अंदाजा लगाएं कि हमारी शरीयत में ईमान के बाद सबसे महबूब अमल रिश्ते जोड़ना, और हमारी शरीयत में शिर्क के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे घटिया और बदतरीन अमल कोई है तो रिश्ते तोड़ना, रिश्तेदारी ना निभाना, अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करना अल्लाह के नजदीक सबसे घटिया और सबसे बदतरीन अमल। आज हमारे यहाँ का मामला क्या है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़े जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते तोड़े जाते हैं। आपने हमें फोन से क्यों दावत दी? शादी का कार्ड आपने व्हाट्सएप के जरिए हमें क्यों भेजा? आप हमारे घर शादी का कार्ड लेकर खुद क्यों नहीं आए? आपने अपने फला रिश्तेदार को क्यों भेज दिया? आपको शादी का कार्ड लेकर खुद आना चाहिए था। फला साहब को तो आपने बारात में भी दावत दी थी, मुझे सिर्फ वलीमे में दावत क्यों? मैं आपके यहाँ शादी में नहीं आऊंगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आज हमारे यहाँ रिश्ते तोड़े जाते हैं। खास तौर से हमारे यहाँ जो दामाद लोग होते हैं, इनके अलग अलग नाटक होते हैं। ससुराल में अगर थोड़ा सी ऊंच नीच हो जाए, शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारे मेहमान आते हैं। अब एक घर के लोग कितने मेहमानों को देख पाएंगे? तो कुछ ऊंच नीच हो गई तो दामाद साहब नाक फुलाकर घर बैठ जाएंगे, ससुराल से उनका आना जाना बंद हो जाएगा। क्या भाई, क्यों? आप क्या हो? पीएम हो, सीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, क्या हो? अरे साहब, हम तो दामाद है। अच्छा, दामाद हो तो सर पे चढ़ोगे? अरे नहीं साहब, दामाद का मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है। ऐसे दामादों को जूतों की नोक पे रखना चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पे नाक बुलाते हैं, नाक चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे रिश्ते तोड़े जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सरहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही औ युनसा लहु फी असरिही। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे रिस्क में बरकत नाजिल कर दे, औ युनसा लहु फी असरिही, और ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी उम्र को लंबी कर दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फल यसिल रहमहु, तो अपने रिश्तेदारों को पहचानो, रिश्ते निभाया करो, रिश्तेदारी निभाया करो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे रिस्क में बरकत भी नाजिल कर देगा और तुम्हारी उम्र को लंबी कर देगा। हम में से कौन है जो नहीं चाहता है कि उसका कारोबार लंबा चौड़ा हो जाए? कौन है जो नहीं चाहता? हम दिन में भाग दौड़ इसीलिए करते हैं कि हमारा लंबा चौड़ा कारोबार हो जाए, 25-50 पावर लूम हमारे पास हो जाए, बड़ी बड़ी गद्दियां हमारे पास हो जाए, बड़े बड़े शहरों में हमारा माल पार्सल जाने लगे। कौन है जो नहीं चाहता?
हर इंसान दिन में भाग दौड़ इसीलिए करता है और रात में टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती है कि कारोबार लंबा चौड़ा कैसे होगा। तो हर इंसान इसी की कोशिश करता है। और आपने फरमाया कि जो तुम में से ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, कोई है हम में से जो 25-30 साल की उम्र में मरना चाहता है? नहीं, 70-80 साल की उम्र में भी कोई मरना नहीं चाहता है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से हमारे रिस्क में बरकत नाजिल कर दे और हमारी उम्र को लंबी कर दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रिश्तों को निभाया करो, रिश्तेदारी निभाया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी उम्र भी लंबी कर देगा और तुम्हारे कारोबार में बरकत भी नाजिल कर देगा। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रिश्ते निभाया करते थे। आप किस तरीके से रिश्ते निभाया करते थे? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल होती है, गारे हिरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल घबराए हुए अपने घर आते हैं। आप अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मेरी रूह न निकल जाए। आए खदीजा, मैं इस बात से डर रहा हूं कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उस मौके पर एक प्यारी बीवी, एक अच्छी बीवी, एक मिसाली बीवी कैसी होती है, आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पढ़कर देखिए कि शौहर टेंशन में हो, शौहर परेशान हो, एक अच्छी और मिसाली बीवी किस तरीके से अपने शौहर को इत्मीनान दिला रही है, सुकून दिला रही है। उस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो ऐतिहासिक जुमले कहे थे, जो तारीखी बातें कही थी, आज भी वो तारीखी जुमले सही बुखारी के सफ़हात पर मौजूद है। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी खूबियों को, कई सारे गुण को आपकी बीवी ने गिनाया। आपने फरमाया कि इन्नका कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, ऐ नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको जलील और कभी बर्बाद नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप तो रिश्ते निभाते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो गरीबों को कमा कर खिलाते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो हक वालों को उनका हक दिलाते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कई सारी खूबियां गिनाई, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी खूबी नजर आई, जिसको सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया, फरमाया कि इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ नबी आप तो रिश्ते निभाने वाले हैं। आप तो दो रिश्तेदारों को अगर आपस में इख्तिलाफ हो गया तो आप उनको मिलाने वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कैसे रुसवा और जलील करेगा। वाकई आप देखें कि अल्लाह के नबी किस तरीके से रिश्ते निभाया करते थे। मक्का के जो काफिर थे, कितना जुल्म सितम आपके ऊपर और आपके सहाबा के ऊपर उन लोगों ने किया, तरह तरह की तकलीफें दी गई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर ऊंट का ओझ रख दिया गया, सजदे से सर उठा नहीं जा रहा है। आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं, अपने मासूम हाथों से आप उस ओझ को हटाती हैं। तरह तरह की तकलीफें दी गई, कदम कदम पे आपको आजमाइश में, मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला किया गया। एक काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आपकी गर्दन में रस्सी बांध कर या कपड़ा लपेट कर आपको कत्ल करना चाहता है, आपका गला दबाना चाहता है। सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अतक़तलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दोगे? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। तरह तरह की तकलीफें दी गई, तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों के साथ आपका जो खानदानी और खूनी रिश्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते को खत्म नहीं किया। मक्का के काफिरों को जमा करके फरमाया, आए कुरैश के लोगों, आए बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के लोगों,
तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तुम्हारी सभ्यता अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, तुम्हारी तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। हम तुम्हारे धार्मिक कार्यक्रम में तो नहीं शरीक होंगे, हम तुम्हारे मजहबी प्रोग्रामों में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन ऐ मक्का के काफिरों, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मेरी खानदान के लोगों, हम तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हम तुमसे रिश्ता निभाते रहेंगे। तुम अपने दीन के ऊपर अमल करो, हम अपने दीन के ऊपर अमल करते हैं, तुम अपनी सभ्यता चलाओ, हम अपनी सभ्यता चलाते हैं, लेकिन हम तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, रिश्ता निभाते रहेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नकुम सतफ्तहून मिस्र, आए मेरे सहाबा करीब तुम लोग मिस्र को फतह कर लोगे। जब मिस्र को फतह कर लोगे तो मिस्र वालों के ऊपर जुल्म सितम न करना, क्योंकि मिस्र वाले मेरी खानदान के लोग हैं और मिस्र वाले मेरी ससुराल के लोग हैं। भला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्र वालों से क्या ताल्लुक हो सकता है? आप मक्का में रहने वाले, मदीना में रहने वाले हैं, जो एशिया में पड़ता है, मिस्र अफ्रीका में, भला मक्का वालों का मिस्र वालों से क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप नसबनामा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 25-30 पुश्तों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी हजरत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा, मिस्र की रहने वाली थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में दादी लगती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर के रिश्ते को भूले नहीं है। आज तो हम अपने खानदान के लोगों को, अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं, अल्लाह के नबी 25-30 पुश्तों के बाद आने वाले रिश्तेदारों को नहीं भूले हैं। और आप कह रहे हैं कि जब मिस्र को फतह कर लोगे तो मिस्र वालों के ऊपर जुल्म सितम न करना, क्योंकि मिस्र वाले मेरी खानदान के लोग हैं। और आपने ये भी फरमाया था कि मिस्र वाले मेरी ससुराल के लोग हैं। आपकी जो बांधी लौटी मारिया किब्तिया थी, मिस्र की रहने वाली थी, अल्लाह के नबी इस रिश्ते को भी नहीं भूले। फरमाया कि जब मिस्र को फतह कर लोगे तो मिस्र के ऊपर जुल्म सितम न करना, क्योंकि मिस्र वाले मेरी खानदान के और मिस्र वाले मेरी ससुराल के लोग। इस तरीके से रिश्ते निभाया करते थे। जब हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मिस्र को फतह किया गया तो मिस्र में जो कैंप लगवाए गए थे, जो खेमे बनवाए गए थे, उन खेमों के ऊपर जो पिलर बनवाए गए थे, उसमें बहुत सारे जानवरों ने, कबूतरियों ने और दूसरे जानवरों ने अपने घोंसले बना लिए थे। जब वो कैंप उखड़वाया जाने लगा तो हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि जानवरों ने अपने घोंसले बना लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कैंप उखड़वाने को, पिलर उखड़वाने से मना कर दिया कि जानवरों के ऊपर भी, मिस्र के जानवरों के ऊपर भी रहम का मामला किया गया। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रिश्ते निभाया करते थे। आज हमारे यहाँ का मामला क्या है कि हम अल्लाह के हक, अल्लाह के हुकूक तो हम खूब अदा कर रहे हैं, नमाजें हम खूब पढ़ रहे हैं, ज़कात हम खूब दे रहे हैं, हज और उम्रे खूब कर रहे हैं, खाने काबा का हम खूब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामला हमारे क्या है कि आज हमारे रिश्तेदारों से हमारी कोई बनती, सगे रिश्तेदारों से हमारा इख्तिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर जुमेरात के दिन में, अभी जो कल दिन था, हर जुमेरात के दिन में और जुमा की रात में, अभी जो 12 घंटा पहले रात थी उस रात में, जुमेरात के दिन में और जुमा की रात में बंदों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तमाम लोगों के अमल को कबूल कर लिया जाता है, सिवाय उन लोगों के जिनका उनके रिश्तेदार के साथ इख्तिलाफ होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फला युक़बल अमल उकाते, उनके अमाल को छोड़कर सारे लोगों के अमाल को कबूल कर लिया जाता है। तो अगर हम अल्लाह के हुकूक में पूरी तरीके से अदायगी करेंगे और बंदे के हुकूक में अगर हम कमी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर हमें माफी नहीं दे सकता है। हाँ, बंदों के हुकूक हम अदा कर रहे हैं और अल्लाह के हुकूक में अगर कुछ कमी हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है उसकी कृपा और दृष्टि रही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक में अगर कमी हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ नहीं करेगा। रिश्तों को निभाना कितना अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताल्लिमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामिकुम, तुम लोग अपने बच्चों को नसब नामों को सिखलाओ
बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को नसब नामों को सिखलाओ कि बताओ बच्चों को कि खानदान में कौन चाचा लगता है, कौन दादा लगता है, कौन फूफा लगते हैं, कौन खालू लगते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बताओ, अगर जब वो बच्चे बड़े होंगे ताकि उनसे अपना रिश्ता निभा सके। आज हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं जितना कार्टूनों से वाकिफ है ये बच्चे उतना अपने रिश्तेदारों से वाकिफ नहीं है, क्योंकि बच्चे खाना कब खाएंगे जब उनके हाथ में मोबाइल फोन होगा, मोबाइल पर कार्टून देखेंगे तभी खाना खाएंगे। तो बच्चे जितना कार्टूनों से वाकिफ है उतना अपने रिश्तेदारों से वाकिफ नहीं है। एक 8 साल के बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है, अभी उसके दादा जिंदा है, दादा का नाम पूछा तो 8 साल का बच्चा अपने दादा का नाम नहीं बता पाएगा। अगर उन्हीं बच्चों से कार्टूनों के नाम पूछोगे तो एक से एक कार्टून के नाम बता देंगे। तो बच्चे जितना कार्टूनों से वाकिफ है उतना अपने रिश्तेदारों से वाकिफ नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ताल्लिमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलूना बिही अरहामिकुम, अपने बच्चों को नस्ब नामों को सिखलाओ ताकि तुम उनसे अपना रिश्ता निभा सको। और हमारे यहाँ का मामला एक ये भी है कि हम रिश्ता उससे निभाते हैं जो हमसे रिश्ता निभाता है। आपके यहाँ शादी थी, आपने हमें बुलाया, हमारे यहाँ शादी पड़ेगी, हम आपको बुलाएंगे। आपके यहाँ शादी थी, आपके फला रिश्तेदार ने 1000 रुपए का गिफ्ट किया, उस रिश्तेदार की यहाँ शादी होगी, आप भी 1000 रुपए का गिफ्ट करेंगे, हालांकि आपकी हैसियत 5000 से भी ज्यादा गिफ्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो बदला देने का, रिटर्न करने का नाम रिश्ते निभाना है। उसके यहाँ से 1000 आया था, हम भी 1000 रुपया देंगे। ईद का मौका आया था, उसके यहाँ उस रिश्तेदार के यहाँ से ईद पर सेवई आई थी, तो हम भी उस रिश्तेदार के यहाँ सेवई भिजवाएंगे। फला रिश्तेदार के यहाँ से कुर्बानी के मौके पर इतना गोश्त आया था, मान लीजिए 250-300 ग्राम, तो हमारे यहाँ भी हम भी बकरीद के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर उतना ही गोश्त भेजेंगे। हालांकि उसके यहाँ सिर्फ, उस रिश्तेदार के यहाँ सिर्फ 1 बकरे की कुर्बानी हुई थी, आपके यहाँ 25-30 बकरों की कुर्बानी हुई, लेकिन नहीं, उसके यहाँ से उतना आया था, हम भी उतना ही देंगे। बदला देने का नाम रिश्तेदारी निभाना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसल वासिल बिल मुकाफी, ये बदला देने का नाम रिश्तेदारी निभाना नहीं है। वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहमुहु, के रिश्ते निभाना उसे कहते हैं कि जो तुम्हें ना दे आप उसे दो, जो शादी में आपको ना बुलाए, आपको न्योता ना दे, आप उसको दे। आपके यहाँ जो रिश्तेदार इन पे सेवई ना भिजवाए, आप उसके यहाँ भिजवाए। जो रिश्तेदार आपको ना बुलाए, आप उसे बुलाए। रिश्तेदारी निभाना इसे कहते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफज़लुस सदक़ती अला ज़ी रहमिन काशिह, सबसे अफजल तरीन सदका वही है जो अपने उन रिश्तेदारों को दिया जाए जो रिश्तेदार आपकी पीठ पीछे बुराई करते हो, जो रिश्तेदार आपको लान तान करते हो। हालांकि ये काम बहुत बड़ा है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, कि अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते। अच्छाई क्या कंपेयर हम बुराई से नहीं कर सकते, और बुराई की तुलना हम अच्छाई से नहीं कर सकते। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन, अगर तुम बुराई का बदला अच्छाई से दोगे फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, सामने वाला अगर तुम्हारा जानी दुश्मन भी होगा, तुम्हारी जान लेने पर अगर आमादा होने वाला शख्स भी होगा, वही जानी दुश्मन आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कौन लोग ऐसा कर सकता है? क्या सारे लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सबके बस की बात है? आगे अल्लाह एक्सप्लेन करते हुए फरमाता है वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये मामला, ये कोई आसान मामला नहीं है। ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने सब्र दे रखा है और जिनका नसीबा और जिनका मकाम अल्लाह की नजर में बहुत ऊंचा है। ये सबके बस की बात नहीं है। हाईवे पर गाड़ी चलाना बहुत आसान काम है। 15 साल का 14 साल का अगर लड़का साइकिल चलाना जानता है, अगर उसको आप एक्टिवा गाड़ी देंगे तो 70-80 की स्पीड से गाड़ी वो भी चला सकता है। गाड़ी चलाना असल कब होगा? जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाए, जहां पर
जैसे दाल मंडी वाली जो गली है, उस गली में आप गाड़ी चलाएं तब माना जाएगा कि आपको गाड़ी चलाने का ढंग है। हाईवे पर गाड़ी चलाकर अपने आप को बहुत बड़ा समझना कि हमें गाड़ी चलाने का ढंग आ गया, ये कोई कमाल की बात नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अपने बुरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने सब्र दे रखा है और जिसका मकाम और जिसका नसीब अल्लाह की नजर में बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने रिश्तेदारों को पहचानें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि यही हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारे लिए नजात का जरिया बनेगा। और दुनिया की बरकतों से और उम्र जो लंबी होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रिश्ते निभाओगे तो तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी और उम्र भी लंबी हो जाएगी। अगर हम इन सारी चीजों को अमल करें, इन सारी चीजों पर अमल करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमारे कारोबार में भी बरकत हासिल करेगा और हमारी उम्र को भी लंबी कर देगा। इस मस्जिद में मैंने एक चीज ये देखा कि लोग ज्यादातर लोग जो है 12:50 के बाद ही आते हैं, 12:45 बजे और 12:50 के बाद। ये हफ्ते में जुमा एक दिन आता है। हमारे पास मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फ्री फायर खेलने के लिए वक्त है, पबजी खेलने के लिए वक्त है, दुनिया भर का है यूट्यूब देखने के लिए वक्त है, गेम खेलने के लिए वक्त, सारे औकात हमारे पास है। हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, जुमा का खुतबा सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बताइए, हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, जुमा का खुतबा सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो हम ऐसा जुमा क्यों पढ़ते हैं कि हम सवाब से महरूम हो जाए? इससे बेहतर है कि घर पे ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया जाए। क्या फायदा है जुमा पढ़ने का कि बस जमात का टाइम हो जाए और 5 मिनट बाकी हो, खतीब साहब अपनी तकरीर खत्म करने वाले हो, तब मस्जिद में आया जाए और जमात के साथ जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ के फिर उसी हालत में बरकरार रह जाए। जब एक इंसान, एक मुसलमान मस्जिद में पहले आएगा, सवाब से भी महरूम नहीं होगा, उसको सवाब भी मिलेगा। और दूसरी चीज है कि जब वो दीन की बातें सुनेगा, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनेगा, उसका ईमान जो है बढ़ जाता है। हमारा ये अकीदा है कि ईमान जो है वो घटता बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया कि वैसा तुतला अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब मोमिनों के सामने, बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की बातें बताई जाती हैं, रसूल की बातें बताई जाती हैं, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो 12:50 पे आएगा, 12:55 पे आएगा, 1-2 मिनट खुतबा सुनेगा, तो उसका ईमान कैसे बढ़ेगा? आजकल हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि हमारे उन आमाल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे दे। दुनिया के अंदर मुसलमान बुराइयों में इस कदर मुलव्विस है कि हम अपने आमाल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत की उम्मीद नहीं लगा सकते। अल्लाह की कृपा और दृष्टि अगर हम पर रही तो हमें जन्नत मिल सकती है, वरना हमारे आमाल ऐसे नहीं है। तो हम ईमान में ज्यादती करें, खुतबा पहले आए, मस्जिद में पहले आए, 12:30 बजे खुतबा शुरू होता है, हम 12:15 बजे मस्जिद में आ जाए, तहियतुल मस्जिद पढ़े, नवाफिल का एहतमाम करें, और जब खुतबा शुरू हो तो हम आधा घंटा 45 मिनट जो भी खुतबा का टाइम है खुतबा सुने, उसके बाद नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाए, ताकि हमारा ईमान जो है बढ़ जाए। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितनी भी बातें मैंने बयान की तो हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की पूरी तौफीक दे। अल्लाह जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो शहादत का कलमा हमारी ज़बान पर हो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।